content creating, software development, and many more. Sometimes our skills match with so many options, and sometimes they don't even match with one. Talking about this, there are several questions which pop in our mind, like which career option is best for me, how much will I earn, and many more. To clear this confusion, we have organized a session with a renowned speaker, Captain Jason Thomas. Captain Jason Thomas is a renowned name in the field of education and corporate for his practical training and talks. He has received Best Parenting Session Award from CBSE in year 2015. He has devoted 6 years of his life in serving nation as an army officer, and thereafter he wanted to guide common people by training them. A motivational speaker, life transforming coach, an avid choreographer, an influential and distinguished leader, his core competency lies in teacher training program, soft skill development, faculty development, team management, and students training development collectively. Under his dynamic leadership, he has established Incisive and Speak in Style Institute for Training and Personality Development. He is also the founder of Lords International School, with giving pins to more than 6 lakh students to swim in the pond of motivation to follow their passion and challenge their limits. This Grandmaster has a rich experience of 15 years in transforming the real life champions for 1 lakh teachers, 50 MNC's enthusiastic employees has interacted and upgraded their inner self. By turning potential into performance, Captain wants to create a pool of young leading minds ready to serve for the nation by establishing an army school under his intelligence. Presently, Captain Jason Thomas is the chairman of Lord International School in Doha and Kerala and own an institute named Incisive where he and his team of 18 international trainers make graduate and postgraduate students employable for the corporates. So it is all आज जो मैं 15-20 मिनट जो भी अभी आप लोगों के साथ कॉन्वर्सेशन करूंगा उसके बाद कुछ क्वेश्चंस लूंगा. दिस इज द अल्टीमेट जो निचोड़ है मेरे उसके पर्सनल लाइफ का, वही मैं कुछ शेयर करूंगा क्योंकि इतने कम समय में आप लोगों को बहुत कुछ बताना मुमकिन नहीं है, बट फिर भी मैं कोशिश करूंगा वो सारी चीजें बताने की. कंफ्यूजन से किस तरीके से बाहर आए. देखो दोस्तों, कंफ्यूजन एक ही चीज का होता है जब हमारे पास ऑप्शन होते हैं तो ही कंफ्यूजन होता है. और दूसरे केस में कंफ्यूजन तब होता है जब हमारे पास कुछ भी नहीं होता है. Like, आज जिस सिचुएशन में है, yesterday I was taking a seminar, webinar. In that webinar, a person asked me this question that सर आज की तारीख में हम लोग घर बैठे हुए हैं और समझ में नहीं आ रहा है क्या करें क्या नहीं करें, तो वी आर इन पैनिक मोड. तो मैंने उनको एक किस्सा सुना है, जो किस्सा मैं आपको सुनाता हूँ और वहां से हम लोग हमारी बात को कंटिन्यू करते हैं. नवीन सर ने एक बहुत अच्छी स्टोरी सुनाई है और उस स्टोरी का जो निचोड़ है, द कंक्लूजन ऑफ दैट स्टोरी इज अ क्वेश्चन दैट अगर ये हो गया तो. ये जो अगर मगर लेके हम लोग जब चलते हैं लाइफ में तो कंफ्यूज होना लाजमी है. और ये अगर मगर क्यों आता है और ये अगर मगर से हम कंफ्यूज क्यों होता है, एक छोटी सी बात सोचें. इमेजिन करो दैट आप 20 फ्लोर के एक बिल्डिंग में हो. यू आर इन अ बिल्डिंग ऑफ 20 फ्लोर, देयर आर 20 फ्लोर एंड यू आर इन अ 9th फ्लोर. आप 9th फ्लोर पे हो और आपको पहुंचना है 20th फ्लोर पे. राइट? एम आई ऑडिबल? या आपको पहुंचना है 20th फ्लोर पे. आप 9th फ्लोर पे लिफ्ट पे चढ़े और थोड़ी जल्दी में थे. अब जल्दबाजी में आपने ग्राउंड फ्लोर का बटन दबा दिया और जैसे आपने ग्राउंड फ्लोर का बटन दबा दिया, लिफ्ट जैसे नीचे जाने लगी. जैसे आप लिफ्ट का ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाओगे, लिफ्ट नीचे जाने लगी. तब आपको रियलाइज होता है, शिट, मुझे तो 20th फ्लोर पे पहुंचना था. तो उस टाइम हम क्या करते हैं, फट से 20th फ्लोर का दबा देते हैं. अब ये जो आपने डिसीजन लिया, ये जो मतलब इंस्टेंट डिसीजन लिया, इट इज ड्यू टू पैनिक. पैनिक होके एकदम 20th फ्लोर पे दबा, जबकि 20th फ्लोर अगर आपने दबाया भी तो भी लिफ्ट पहले ग्राउंड फ्लोर पे जाएगी, उसके बाद ही 20th फ्लोर पे जाएगी. यू टुक अ डिसीजन एंड इट वाज नॉट अ डिसीजन, इट वाज इन हरी बरी. आपने फट से वो ग्राउंड फ्लोर दबा दिया. तो दोस्तों एक बात ध्यान रखें,
कंफ्यूजन से दूर होना है, कंफ्यूजन से बाहर आना है, सबसे पहली बात तो आपके अंदर आपको पेशेंस डेवलप करना है। यू नीड टू थिंक एंड एक्ट, एंड स्पेशली इन दिस सिचुएशन आपको ये बात समझना पड़ेगा कि इमेजिन करो कि आपने ग्राउंड फ्लोर भी दबा दिया। अब ग्राउंड फ्लोर, 9th फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पहुंचने में ऑन एन एवरेज 1.5 से 2 मिनट लगेगा, या 1 मिनट लगेगा मान के चलो। आपके पास काफी 1 मिनट का समय है जिसमें आप आराम से अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं, फिर आप 20th फ्लोर का दबा सकते हैं। नहीं भी पहुंचे, अगर ग्राउंड में भी पहुंचे उसके बावजूद भी बाद भी आप दबा सकते हैं, आपके पास इतना समय है। लेकिन नहीं, हम हड़बड़ाहट में वो सब चीजें कर देते हैं। कभी कभार हड़बड़ाहट में 20th की जगह वापस कोई गलत बटन दबा देते हैं, उससे हम लोग और लेट होते हैं, उससे हम अपने आप को और चिड़चिड़ा महसूस करते हैं। तो मैंने इस स्टोरी के साथ उस लड़के को एक बात समझाया, मैंने बोला यार आज तक के इतिहास में मैं अगर अपनी करियर बोलूं, चाहे नवीन जी की करियर बोलूं, आप अपने पिताजी की करियर देखना, अपनी माताजी की करियर देखना, आज तक के इतिहास में कभी भी ऐसा नहीं हुआ है किसी को ये मौका मिला हो कि अपने ग्रेजुएशन के बाद या अपनी पढ़ाई के बाद 2 से 3 महीने घर पे कुछ नहीं करते हुए फालतू बिताए। ये इतिहास में पहली बार हो रहा है कि आप पढ़ाई कर रहे हो और पढ़ाई करने के बाद आपको शायद आगे चल के आपका एक कंक्लूजन मिलेगा, या आप आगे जॉब करोगे, या कैंपस आने वाला जो भी हो, उसमें कभी भी आज तक इतिहास में नहीं हुआ जहां आपको 3 महीने घर फालतू बैठने को मिला ना। अब जो समय गुजर गया, 3 महीने जो गुजर गया वो गुजर गया। अब आने वाला जो 10 दिन है आपके पास, अब इस 10 दिन में आपको डिसीजन लेना है कि आप क्या कर सकते हो बेहतर। अगर जैसे मुझे नवीन जी ने बताया था कि सर आर्मी के बारे में कुछ बताएं, सी माय डियर फ्रेंड्स, इफ यू रियली वांट टू जॉइन आर्मी, आज भी फौज में 4000 अफसर्स की कमी है। आप सोच सकते हैं कि 130 करोड़ से भी ज्यादा की जनसंख्या है हमारे देश की, और फॉर्चुनेटली इंडिया इज वन ऑफ द कंट्री जहां पे लोग फौज में जाने के लिए प्रेरित रहते हैं, या उतावले रहते हैं, या मोटिवेटेड रहते हैं। देयर आर सो मेनी कंट्रीज जहां पे फौज ज्वाइन करना ही उनको बहुत बड़ा रिस्क लगता है, लाइफ रिस्क लगता है, ऑल्दो इट्स अ हैजार्डियस जॉब। बट हम हिंदुस्तान में फौज को बहुत गरिमा के साथ देखते हैं, फौज में जाना अपने आप में गर्व महसूस करते हैं। बट यही अपने पेरेंट्स से आप पूछ के देखोगे तो स्पेशली मम्मी मना कर देगी आपको जाने, क्योंकि मैंने देखा है ऐसे कि कई लोगों का तो सिलेक्शन हो जाता है, उसके बावजूद एंड मना कर देते। तो आपको समझना पड़ेगा कि आपको OLQs डेवलप करने अपने अंदर। OLQ होता है ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज, दैट यू नीड टू डेवलप इन यू। एंड उसमें एक सबसे बड़ा क्वालिटी है कमिंग आउट ऑफ योर कंफ्यूजन, टेकिंग डिसीजंस। लाइफ में हमेशा याद रखिएगा, decision, never delay your decision. And this is not my statement, this is a statement by Ratan Tata. He gave this statement, although this is somehow relevant with my life, that yes, I follow this time. That's why I'm sharing this quote with you. Never delay your decision, take a decision, and if that decision is right, well and good, enjoy. And unfortunately if it turns wrong, give your heart, soul and time to make it right. That is what you can do. But if you're not taking a decision, if you're just waiting for that D-Day to come, if you're waiting like people to make you confuse more, like भैंस मर गई तो क्या होगा, ऐसे 10 लोग आके आपके सामने बोलेंगे, आप उन सबको मौका देंगे। आपको पता है एक सच्चाई में आपको बताऊं, आप जितने कंफ्यूज दिखोगे ना, लोग आपको उतना कंफ्यूज करेंगे। आप जितने कॉन्फिडेंट दिखोगे, लोग आपको उतना कॉन्फिडेंस देंगे। अगर मैं जैसे आप बताओ, आप में से कितने लोग लक पे भरोसा रखते हैं? इंस्टेंट अगर मैं क्वेश्चन पूछने के बजाय मैं आपको बता दूं कि लक पे कई लोग भरोसा रखते हैं, बट आप अपने लक को एक्सप्लोर कैसे करोगे? आप लक को एक्सप्लोर तब तक नहीं कर सकते हो जब तक आप ट्राई नहीं करोगे। आप कोई बहुत बड़ा रिस्क लेके देखो, उस रिस्क से आप बाहर आ जाते हो, तब आपको समझ में आएगा यस आई एम अ लकी पर्सन। घर बैठे बैठे फालतू बैठे रहने से आप ये नहीं सोच सकते कि मैं लकी हूं।